सो गाइस आगे बढ़ते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट. अच्छा जी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई स्पेसिफिक सेगमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल है, उसको रिपोर्ट करना है. कहाँ रिपोर्ट होता है, बेसिकली कहाँ रिपोर्ट होता है, ये होता है डिस्क्लोजर्स में. डिस्क्लोजर्स में ये रिपोर्ट होता है. सबसे पहली चीज़ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज 10% रूल, यानी कि 10% रूल ऑफ रेवेन्यू, 10% rule of profit and loss, and 10% rule of assets. ठीक है, इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं. इफ पहला रूल जो है 10% ऑफ रेवेन्यू, इफ टोटल रेवेन्यू of any operating segment is equals to or greater than total revenue of all operating segment. टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स. ठीक है, इंटर सेगमेंटल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं. यानी कि किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट की अगर सेल्स जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 10% ऑफ टोटल सेल्स हैं, तो दैट सेगमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज अ ऑपरेटिंग सेगमेंट. सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस क्राइटेरिया. First of all, you have to calculate total profit of all operating segments, and then you have to calculate total loss of all operating segments. Whichever is higher, whichever among these both is higher, whichever is higher, multiply it by 10%. First of all, you have to calculate the profit of all operating segments, then you have to calculate the total loss of all operating segments, then whichever is higher among these both, multiply it by 10%. Whichever value is coming after multiplying this by 10%, compare this value with each operating segment's profit or loss. What does this actually means? इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर देंगे. कैन वी अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, I have multiple segments. I have multiple operating segment. Remember the operating segments 4 and 5th.
इसका 10 लॉस है, इसका 20 प्रॉफिट है, इसका 30 प्रॉफिट है, इसका लॉस है 40 से, इसका लॉस जो है वो 50 से है. देन वी हैव द नेक्स्ट सेगमेंट एज वेल, ऑपरेटिंग सेगमेंट एज वेल, जो कि लॉस है 20 का. ठीक है. व्हाट इज़ द रूल? द रूल स्टेट्स दैट first of all calculate all the profit of all operating segment, then calculate the total loss of all operating segment. सही है. तो I will calculate first of all the profit which is 10, 20, 30. ठीक है. It comes to 60. Then what is the loss? The loss is 40, 50, that's 90, and 90 plus 20 is 110. 110. See, I have a total loss of 110 and I have a total profit of 60. So compare these both, whichever is higher I will select. Obviously 110 is higher. Ignore the minus sign, ignore the positive sign, just look for the absolute value. Absolute value means ignoring the minus and plus sign. So I will select 110 and will multiply it by 10%. It is 11. So this 11 is to be compared with each segment's profit and loss. अच्छा, सेगमेंट 1 का देखें आप. ये क्या ये रिपोर्टेबल है? नो. क्या ये रिपोर्टेबल है? यस. 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 या क्या ये रिपोर्टेबल है? यस. सो आई हैव सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. 1, 2, 3, 4, 5. I have these 4 segments which are reportable. So I would say that from segment 2 to segment 6 all are considered as a reportable segments, as their profit or loss exceeds or equals to the threshold amount, of 11. ठीक है. क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है चाहे लॉस हो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 11 से, तो 10 11 से छोटा है. दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. 20 is greater than 11, so it is considered to be a reportable segment. And then 30, 40, 50, 20. For reporting purpose I will consider only absolute values. Absolute values का मतलब क्या है कि I will ignore the minus and plus sign. I will just consider the absolute value. ठीक है. सेकंड थ्रेशोल्ड हुआ. और अब हमारे पास जो थर्ड थ्रेशोल्ड था 10% वाली कैटेगरी में, 10% रूल में जो हमारे पास था वो एसेट था. इफ एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स assets is greater than or equals to 10% of the total asset of all operating segment. ठीक है. अगर उसके एसेट, किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट 10% या ज़्यादा हों टोटल एसेट से, तो that will also be considered as a reportable segment. अच्छा जी, ये तो हो गए रिपोर्टेबल सेगमेंट. सही है. एक शॉर्ट समरी मैं आपको बताऊंगा इस IFRS की. शॉर्ट समरी ये कि सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किए सेगमेंट्स. ठीक है. सही है. फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, इसके 50 सेगमेंट्स हैं. सेकेंडली मैं ये देखूंगा कि विच आर द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स. इन 50 में से
मैंने आइडेंटिफाई किए, जो क्राइटेरिया मैंने आपको ऊपर बताया था, जो 3 पॉइंट मस्ट बी मेट, उनमें से 20 सेगमेंट ऐसे थे जो ऑपरेटिंग सेगमेंट थे। नंबर 3, मैं आइडेंटिफाई करूँगा विच आर द रिपोर्टिंग सेगमेंट, इन 20 में से कितने रिपोर्टिंग सेगमेंट्स होंगे बेस्ड ऑन द 10% क्राइटेरिया रूल। सही, बेस्ड ऑन द 10% क्राइटेरिया रूल। अच्छा, फर्दर 2 क्राइटेरिया और हैं, 2-3 क्राइटेरिया और हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइडेंटिफाई किए कि ये 10 जो हैं ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, मीटिंग द क्राइटेरिया। फर्दर क्राइटेरिया हम देखेंगे, सही है, इसको 10% रूल तक लिमिट ना करें। अगर चाहे 10% रूल वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा हो या फर्दर आगे 75% वाला क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया, तो वो अगर मीट होते हैं तो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। अच्छा सर, ये बताएं 50 टोटल सेगमेंट्स से ठीक है, उसमें से हमने आइडेंटिफाई किए 20 ऑपरेटिंग सेगमेंट है एंड 10 जो है वो रिपोर्टेबल है। रिमेनिंग जितने भी बचे 50 में से 10 मैंने रिपोर्ट किए हैं, तो 40 जो है वो अनरिपोर्टेड है। इसका क्या करें सर, इसका क्या करें? शुड दीज बी रिपोर्टेड और नॉट? ठीक है, क्या ये रिपोर्ट होंगे या नहीं? इसका आंसर है यस, इफ मैनेजमेंट considers them to be reportable। हाँ, अगर मैनेजमेंट ये समझती है कि इनको भी रिपोर्ट करना चाहिए या इनमें से कुछ रिपोर्ट होने चाहिए, तो उनको जो है वो रिपोर्ट बिल्कुल किया जाएगा इन द डिस्क्लोजर, यानी कि नोट्स टू द अकाउंट्स में। अच्छा, एक हमारे पास है 75% रूल। ठीक है, 75% रूल ये भी जो है वो आइडेंटिफाई करता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, एक 10% वाला रूल है और एक 75% वाला रूल है। इसे भी हम लोग रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या कहता है कि इफ़ ऑपरेटिंग सेगमेंट, कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट हो, सेगमेंट्स एक्सटर्नल रेवेन्यू, सिर्फ एक्सटर्नल, वहाँ पे क्या था, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेवेन्यू इज लेस देन एंटिटीज, इज लेस देन 75% of the entity's revenue, then further operating segment must be identified and combined in order to meet the 75% threshold criteria। इसका मतलब क्या है कि एक सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल है, एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है ए और उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है? फॉर एग्जांपल उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू 65% है ऑफ टोटल रेवेन्यू।
ठीक है, एंटिटीज टोटल रेवेन्यू का 65% है। तो हम फर्दर ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेगमेंट बी आइडेंटिफाई किया, एक मैंने कहा कि सेगमेंट एफ है जो कि ऑपरेटिंग है, इनके रेवेन्यू मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, इसका भी रेवेन्यू मैं इसमें ऐड कर दूंगा, सही है। फॉर एग्जांपल इसका जब मैंने रेवेन्यू ऐड किया तो ये 70% बन गया, और इसका रेवेन्यू जब मैंने इसमें ऐड किया तो ये 75% बन गया। तो अब इन तीनों का जो है वो रेवेन्यू मिल के कितना बन गया, 75%। सो नाउ इट meets the 75% threshold. It should be considered as a reportable segment। यानी कि इन तीनों के मैं रिजल्ट कंबाइन करूँगा और उनको मैं प्रेजेंट करूँगा इन द डिस्क्लोजर्स में एज एन रिपोर्टेबल सेगमेंट, सही है। याद रखें कि ये दो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट ही होने चाहिए, जस्ट सेगमेंट नहीं, ऑपरेटिंग सेगमेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा गाइस, एक चीज़ फर्दर आपके IFRS में आइडेंटिफाई हुई है, ठीक है, जो ये कहती है कि अगर एक से या उससे ज़्यादा सेगमेंट, एक या उससे ज़्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग सेगमेंट के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे हम देखेंगे। तो इनको दोनों को कंबाइन करना चाहिए, तीनों को कंबाइन कर लें, जितने भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले सेगमेंट हैं वो कंबाइन कर लें एज अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। इस क्राइटेरिया क्या कहते हैं, एग्रीगेशन क्राइटेरिया, ठीक है, एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, एडिंग अप, ठीक है, एड अप, ठीक है। अच्छा जी, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये क्या होता है, इफ दे हैव सिमिलर नेचर सिमिलर हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिमिलर हो, क्लास ऑफ कस्टमर वो सिमिलर हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिमिलर हो, लॉज एंड रेगुलेशन, कोई भी कंप्लाइंस वगैरह हो, सही है, कंप्लाइंस हो, दोनों पे सेम कंप्लाइंस अप्लाई होती है, वो सिमिलर हो, ठीक है। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस वो सिमिलर हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो सिमिलर हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है कि मैं एक प्रोडक्ट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो सेल आउट करता हूँ और दूसरी प्रोडक्ट जो है ना थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू मैं सेल आउट करता हूँ, तो ये सिमिलर नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये अलग अलग कहलाएगा। क्लास ऑफ कस्टमर, ठीक है, एक मेरे पास लोकल कस्टमर है, एक फॉरेन कस्टमर है, तो ये भी मेरे सिमिलर नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों का सिमिलर होना चाहिए। लॉज एंड रेगुलेशन परटेनिंग टू दैट प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी सिमिलर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 क्राइटेरिया बीट होने चाहिए, तब जाके हम दो या दो से ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है उनको एग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि उनके रिजल्ट को एडअप कर सकते हैं। सर इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये है कि IFRS 8 फोकस करता है कि जितनी आप इन्हांस रिपोर्टिंग करोगे शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर्स को, उतनी ज़्यादा जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सही है। IFRS 8 का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी ज़्यादा डिस्क्लोजर आप दें फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस वो बेटर रहेगा। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे अभी व्हाट आर द
disclosure requirements of IFRS 8. ठीक है, what are the disclosure requirement of IFRS में 8? How are these disclosure made? ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो डिस्क्लोजर्स देते हैं, जो डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन हम अपने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देते हैं, वो सबसे पहले क्या है? हाउ एनी ऑपरेटिंग सेगमेंट जनरेट्स इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है ए, सही, उसके ऑपरेशंस जो है वो क्या है? वो जनरेट करती है रेवेन्यू। उनके क्या कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज़ हैं। एक सेगमेंट इसका है ऑटो पार्ट्स, एक सेगमेंट इसका है सॉफ्टवेयर, एक सेगमेंट है इसका रिटेल। ठीक है, ऑटो पार्ट क्या करता है? सेल्स टू रिटेलर्स, स्पेयर पार्ट रिटेलर को सेल करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? सेल सॉफ्टवेयर्स टू कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। सही, ये इस तरह के जो है इस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। रिटेल पोर्शन क्या करता है? टू एंड कस्टमर को सेल करता है। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंडली क्या? हाउ डू दे measure its profit, loss, assets and liabilities? हाँ, ये किस तरह मेजर करते हैं अपने एसेट्स, अपने लायबिलिटीज़, अपने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, इसका डिस्क्लोजर आपने देना है। और दूसरी चीज़ आपने बतानी है डिस्क्लोजर में कि हाउ डू दे मेजर देयर प्रॉफिट, लॉस, एसेट एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंटेशन तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी तो है, लेकिन हाउ दिस इंफॉर्मेशन शुड बी presented, how this information should be presented in the disclosure notes. So the answer is similar way that are prepared in मैनेजमेंट अकाउंट्स। अच्छा, जब ये प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट आई IFRS 8 की तरफ से, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आया। वो ये था कि जो प्रिपेयर ऑफ इस डिस्क्लोजर नोट्स थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि इस पर काफ़ी कॉस्ट लगेगी और कंसिडरिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इस पे IFRS ने कहा कि सिमिलर मैनर, जिस मैनर में आपने मैनेजमेंट अकाउंट प्रिपेयर किए हैं ना, उसी मैनर में आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर नोट्स में। सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट, सेम टाइप ऑफ क्राइटेरिया जो आपने मैनेजमेंट अकाउंट के लिए आइडेंटिफाई किया है, वही आपने डिस्क्लोजर नोट में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, शो करना है। सो
दैट्स प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया। प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन क्या थी, प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया ये है। प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन जो है ये दो चीज़ें हैं, इसमें इसको आपने याद रखनी है और इसको आप कोशिश करें कि तमाम ये जो पॉइंट्स हैं बुलेट पॉइंट्स में बनाएं। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन स्लाइड भी दूंगा, इसके बाद जो IFRS के ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी मैनर आपको इजी लगता है, द बेस्ट मैनर ये है कि आप बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट बनाएं, जितना इजी हो सके इसको लें, इसको याद करें और कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाएं। चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आप जो है वो रिपीट किया करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं SBR में वो मिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होते हैं। आपको ये फिर बेनिफिट हो जाएगा कि आप इजीली जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। कोई भी IFRS अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन में तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे। और दूसरी चैलेंजिंग बात ये कि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कि वो किस एरिया में से पूछ रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक IFRS है, IFRS 8 ही है, IFRS 8 में से वो कौन से कंपोनेंट को क्लिक करें, हो सकता है वो प्रेजेंटेशन एरिया का पूछ लें, तो आपको इसकी अच्छी नॉलेज होगी अगर आपने इसको अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि वो इन दो एग्रीगेशन क्राइटेरिया का पूछ लें, तो ऐसा कुछ नहीं पता होता कि वो लाजमी है कि टॉप से सिक्वेंशियल IFRS पूछ सकता है। वो एनी ऑफ द एरिया जो है वो पूछ सकता है, उस पर आपके क्वेश्चन जो कर सकता है। तो चीज़ों को बहुत इजी वर्ड्स में लेके चलें ताकि आपको प्रेजेंटेशन में आसानी हो, क्वेश्चन से आप चीज़ों को नरेट करें, लिंक करें। अच्छा गाइज, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसके बेसिस पे एंटिटी जो है वो डिसाइड करती है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एंटिटीज जो है वो आइडेंटिफाई करती है इसके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। वो फैक्टर्स कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ maybe on the basis of geographical location or product basis or any other, ठीक है। जो भी बेसिस मैनेजमेंट यूज़ करती है अपनी मैनेजमेंट अकाउंट्स में, आपने वो सेम बेसिस यूज़ करने हैं डिस्क्लोजर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में आपने सिमिलर बेसिस को कंसिडर करते हुए उनकी रिपोर्टिंग करनी है जो मैनेजमेंट अकाउंट में आपने की है, सही। तो IFRS 8 जो है ना हमें फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि जो भी मैनेजमेंट अकाउंट आपने प्रिपेयर किए हैं उसी के फॉर्मेट पे उसी की चीज़ें लेके आपने डिस्क्लोजर नोट्स में ये डाटा प्रेजेंट करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन अबाउट ये तो ये था कि हाउ डू दे मेजर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लायबिलिटीज, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट होगी इसको हम देखते हैं कि मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन to be presented in the disclosure notes of financial statement for profit and loss and बैलेंस शीट। अच्छा, आपने मैंडेटरी चीज़ें क्या बतानी है? मैंडेटरी चीज़ें आपने जो शो करनी है, प्रेजेंट करनी है इनकम स्टेटमेंट के हवाले से, उसमें आपने क्या बताना है? सबसे पहली चीज़ आपने रेवेन्यू बताना है, रेवेन्यू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने बतानी है, इंटरेस्ट, बोथ इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस
तीसरी चीज़ डेप्रिसिएशन प्लस एमोटाइजेशन। ठीक है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंडेटरी आपने डिस्क्लोज करनी है। फोर्थ वन इज मेजर नॉन कैश एक्सपेंसेस, और फिफ्थ वन जो है वो प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये वो 5 मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इनकम स्टेटमेंट जो आपने लाजमी डिस्क्लोजर नोट्स में आपने प्रेजेंट करने हैं। अच्छा जी, बैलेंस शीट के लिए क्या चीज़ें आपने लाजमी देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है? आपने मेजर नॉन कैश एक्सपेंस जो कि इम्पेयरमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने नॉन करंट एसेट बताना है, और एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट ये बताना है। अच्छा जी, और जो लास्ट थिंग है वो आपने क्या बतानी है? रिपोर्टेबल सेगमेंट लायबिलिटीज, रिपोर्टेबल सेगमेंट लायबिलिटी। ओनली इफ, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ या ऐड करें, ओनली इफ मैनेजमेंट regularly reviews them in internal reports। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास टोटल 8 चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन जो है प्रेजेंट करनी होगी। रेवेन्यू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरेस्ट बोथ एक्सपेंस एंड इनकम, डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन, मेजर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में क्या प्रोड्यूस करना है? नॉन करंट एसेट बताना है, एक्सपेंडिचर जो नॉन करंट एसेट के हो चुके हैं ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट वो बताना है, एंड रिपोर्टेबल सेगमेंट लायबिलिटीज ओनली इफ दे आर रेगुलरली रिव्यूड बाय मैनेजमेंट इन देयर इंटरनल रिपोर्ट्स। ठीक है, इसका लास्ट सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे अपने 3rd लेक्चर में।